Hello friends. Today we will gonna talk about National Education Policy 2020, the most awaited reform in the education sector. So let's get started. I think हम में से हर कोई ये सिचुएशन याद है कि वी आर इन व्हेन वी आर इन स्कूल यू ऑलवेज इन अ प्रेशर दैट जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें याद आएगा कि नहीं पेपर के टाइम पे. सो because the focus is on the rote learning, not on the knowledge acquisition. So but ये जो टेंशन है ये निकाल दी है अभी इस पॉलिसी ने. So now the focus is not on rote learning but is on skill acquisition. Okay, so देख लेते हैं फटाफट क्या एजुकेशन में रिफॉर्म है. फर्स्ट दे टॉक अबाउट स्कूल एजुकेशन दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम द प्री प्राइमरी स्कूल्स टू ग्रेड 12. इनका टारगेट है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अचीव करना 2020 तक. सेकेंड इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दैट इज ECC दैट इज 3 to 6 years जो कि आंगनवाड़ी अगर में आता है 3 to 6 year तक जो एजुकेशन है. तो दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस बाय 2025 तक अचीव करना है. Important reform is that currently the structure है 10+2. Now it will be replaced by the 5+3+3+4. So after 5 years in the pre-primary school, the students is aim at enhance their skill. Okay, बाद में यहाँ पे skills वाले subject आ जाएंगे like a coding also. Then national mission on the foundational literacy and numeracy, that is early language and mathematical skills which are very important. वो एक्वायर करना है फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड तक बाय 2025. देन मल्टीलिंग्विलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज दैट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल द क्लास 5 प्रिफरेबली टिल 8 तक भी होम लैंग्वेज दैट इज मदर टंग होगी. इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टेट. Then there is a reforms in exam system also, it is board exam. Now the board exams are not as important as they are previously. Board exam they are broken into the two to just to test the core capabilities, that is just to test the basic knowledge. Okay, even the core subjects का जो importance है वो भी अभी कम होगा मतलब. And now always a focus on the skill. Okay, how much skill you acquire. Then national assessment center that is called पारक सेंटर एक है जो कि असेसमेंट करेगा पैन इंडिया लेवल पे. देन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली फॉर गर्ल्स हैं या सोशली डिसएडवांटेज स्पेशली चैलेंज पीपल के उनके लिए. देन टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ इज ऑल्सो दैट इज एक स्टैंडर्ड है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST और उसमें टेस्ट भी लिया जाएगा टीचर का दैट टीचर आर क्वालिफाइड और नॉट. देन वोकेशनल एजुकेशन 50% है स्टिल एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर है वोकेशनल एजुकेशन में. देन वी विल सी द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिस्टम दैट इज 5+3+3+4. The 5 that is first 5 years तक their foundational stage. Okay, basically activity based learning होगा इसमें. Then preparatory stage है that is class 3 to class 5 that is aged 8 to 11. इसमें activity based भी होगा पर interactive भी होगा. बाद में class 6 से 8 तक you will get different subjects to teach. Okay, in the science, in the maths, arts, social science, humanities. Okay, and afterwards in class 9 to 12 there will be greater critical thinking flexibility and उसमें स्टूडेंट्स को भी चॉइस दिया जाएगा कि which subject you want to select for the further studies. Okay, so basically you have a large choice. I feel jealous about it. For the future generation of course I feel jealous but it's okay. Okay, आने वाले जो लोग रहेंगे उनको
ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये सिस्टम। न्यू 3 to 5 plus 3 plus 3 plus 4, oh my god, it is awesome. And Anganwadi, and this is a very important thing, that is a no rigid separation. So separation ही नहीं है academic streams, extra curricular, vocational stream में. And if you wanted to learn a music, you can learn music. If you want to learn a maths, you can learn maths also. If you want to learn a dance, if you want to learn psychology, if you wanted to learn traditional any art, okay, so there is basically no academic separations, yeah, extracurricular vocational stream में. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास 6 में ही आपको इंटर्नशिप मिलेगी. वोकेशनल एजुकेशन इज टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप. दैट इज फ्रॉम क्लास 6 यू कैन गो इन अ ट्रेडिशनल, जो लोकल क्राफ्ट्समैन है, लोकल आर्टिस्ट है, लोकल इंडस्ट्रीज है, उसमें आप जाके क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं. दिस इज अ बेसिक एडवांटेज. ये होगा तो स्कूल एजुकेशंस के लिए. जो हायर एजुकेशंस के लिए, उनके लिए क्या है, हायर एजुकेशन में भी सेम है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स आर अलाउड. देन अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ओके, एक क्रेडिट स्टोर रहेगा, दैट इज स्पेशलिस्ट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स. ओके, इग्नू में ऑलरेडी है ये सिस्टम. ओके, यू कैन गेट अ क्रेडिट, ओके, फॉर योर एग्जाम पैटर्न, एंड देन यू कैन ट्रांसफ़र. ओके, तो इसमें एक फ़ायदा रहता है कि स्टूडेंट का 1 ईयर वेस्ट नहीं जाता इसमें. एनिमी टेक्नोलॉजी भी है. टेक्नोलॉजी में नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इज़ ऑल्सो क्रिएटेड. टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा लेकिन विद द इक्विटी के साथ. जिन जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का एक्सेस अभी तक नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ तो करेगी. ओके, ऐसा इसमें बोला तो गया, अभी पता नहीं इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश in the USA. If you know that national science education नेशनल साइंस फाउंडेशन ऐसा कुछ या NSF करके, और उनके जो रिसर्च है वो NSF में ही होते हैं. ओके, इस टाइप की बॉडी इंडिया में अभी तक नहीं थी, बट यहाँ पे बोला कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन दे विल बी इस्टेब्लिश. देन नेशनल एजुकेशन 22 जिस पॉलिसी 2020 ऑल्सो एम्फेसिस ऑन सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड. ओके, जो इंक्लूजन है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बनाए जाएंगे फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप. देन एफिलिएशन सिस्टम, जो एफिलेटेड सिस्टम है, अभी ऐसा रहता है कि एफिलेटेड इज समथिंग इज एफिलेटेड कॉलेजेस और सम आर नॉन एफिलेटेड कॉलेजेस सेक्शंस रहते हैं. तो ये सिस्टम जो है फेज आउट होने वाली, ओके, नेक्स्ट 15 ईयर्स में विद द ग्रेडेड ऑटोनॉमी. तो कॉलेजेस को A++, देन B++, ऐसे ग्रेड्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, सो यू कैन सेलेक्ट दैम. देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन, प्राकृत, then Indian Institute of Translation Interpretation is also set up so that regional languages को बढ़ावा दिया जाए. अगेन द जो नॉलेज है ट्रेडिशनल कल्चर और ट्रेडिशनल आर्ट्स का, वो भी सामने आ जाए. और हायर एजुकेशन में और सारे रिफॉर्म्स है, लाइक अम्ब्रेला रेगुलेटर. ओके, अभी कैसा UGC अलग है, AICTC अलग है. ओके, अभी एक ही रेगुलेटर रहेगा, नेशनल single regulator. Then there will be a flexibility and holistic multidisciplinary UG degrees of 3 to 4 years durations. Okay, again जो PG programs है वो भी 1 to 2 years के ही है. okay, और MPhil अभी नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट PhD रहेगा इसमें, अभी MPhil नहीं है. और ये तो है कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम इज टू बी फेज आउट. UG प्रोग्राम इज फॉर द 3 to 4 years. इसमें 3 ईयर तक आपको क्या करना है, थेरी पढ़ना है, और 4 ईयर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है. PG कोर्स में भी सेम, 1 में थेरी पढ़ना है, 2nd ईयर में प्रैक्टिकल्स. सेपरेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट आल्सो सेटअप फॉर डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज. बेसिकली जो 6% ऑफ GDP है वो भी एजुकेशंस में जाएगा, एजुकेशन में स्पेंड होगा. दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया. ओके, बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, थैंक यू.